all, continuing with our series of episodes of Talk with Renowned Personalities, Aurangabad Vikasa is here again with live chat with AIR2 of May 2022 CA final exams, CA Akshat Goel. So, hello Akshat. Big congratulations from Aurangabad and from my side for bagging AIR2. So, how was it? Did you pinch yourself after seeing the results, or you were like, "Haan, aane to wala tha hi"? So first of all, thank you so much, Vidhi and Aurangabad Vikasa for all your wishes. And secondly, I was sleeping when the result came. Like I got informed of the result at around 7:45 when a friend called के result आ गया. So I was like मजाक मत कर. मुझे लगा सच में आ गया. So I was like अच्छा ठीक है आ गया होगा मैं सो रहा हूँ. So they kept repeating अरे आ गया मान रहे check तो कर. So then I actually checked the result. Then I saw AIR2. I rechecked the result once or twice, and then I informed my family, and then the celebration actually started. And I realized that yes, it has actually come. So we'll start with your school days. You were topper since then, yeah, abhi. Yeah, I was sort of a topper in school also. I'm quite academically oriented sort of. So I was in fact the school Rajasthan topper in 12th CBSE. So let me inform the people that he was also AIR1 of intermediate, and you were also AIR in CPT, I guess. You had some 184 marks. They do not declare ranks, so yes. I cannot say. No one had marks more than you. 194, right? In my knowledge, I did not come across anyone having more than 190. So you were so talented, like since childhood. So why did you choose CA? How did you come to know about CA? So my father is a chartered accountant and my elder sister is also a chartered accountant. So that it almost came subconsciously, automatically that I have to go towards CA only. It was a very subconscious sort of decision. बचपन से decided था क्या कि ये तो CA करेगा या बाद में? So not decided. 9th, 10th somewhat became clear कि हाँ मुझे भी उसी रास्ते पे ही जाना है. So where did you join articleship? Articleship pursued from Kalani and Company in Jaipur. So we have been seeing a general trend that practicality is prioritized, but many students are not taking articleship that seriously or like enthusiastically. So how much important is articleship in your opinion? So I believe articleship is the a very USP of the CA course, because पढ़ाई तो हर जगह होती है. Articleship is something जो हमारे कोर्स को नॉर्मली ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से डिफरेंट बनाती है. इस CA में हम एज अ फ्रेशर हमारे पास 3 साल का वर्क एक्स है. तो दैट इज व्हाट मेक्स अ CA. मतलब सिर्फ पढ़ाई से हम एक प्रॉपर CA नहीं बनते हैं. वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफी इंपॉर्टेंट रहता है. तो इनफैक्ट वो पढ़ाई में भी हेल्प करता है हमको. 3 साल की जो आर्टिकलशिप होती है, हमने जिन फील्ड्स में काम किया है वो हमारे एग्जाम्स में भी हेल्प करती है. और एज अ पर्सनल ग्रोथ तो डेफिनेटली वो है ही. लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे काम करना है, कैसे काम करवाना है. एज अ फ्रेशर मतलब कोई भी एम्प्लॉय आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 3 साल काम करके आए हो. तो आपने अगर नहीं किया तो समवेयर आप लैग बिहाइंड कर रहे हो. तो आपने पूरे 3 साल अच्छी से कंप्लीट किए और फिर भी AIR लाया. तो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस की लेक्चर, स्टडीज, आर्टिकलशिप, मतलब क्या रूटीन फॉलो करते थे आप और सब प्रॉपर करते थे? सो इसको मैनेज करने के लिए फर्स्ट सबसे बड़ा हमारी प्लानिंग रहती है कि आपको स्टार्टिंग से प्लान करके रखना है कि क्लासेस कब तक खत्म करनी है, रिविजन्स कितने करना है. वो प्लान के हिसाब से चलते रहेंगे तो अपना मैनेज हो जाता है. सो मेरा शेड्यूल नॉर्मली आर्टिकलशिप में रहता था कि सुबह स्टार्टिंग में सैटेलाइट क्लासेस जब होती थी कोरोना से पहले, तो 7 to 10 की क्लास रहती थी. उसके बाद ऑफिस 5-6 बजे तक ऑफिस, घर जाके थोड़ा बहुत होमवर्क किया और सो गया. तो रोज की एक 3 घंटे क्लास रहती थी. बाद में फिर कोरोना के बाद पेनड्राइव क्लासेस हो गई थी, तो उसमें भी यही मेंटेन रहता, रोज की 3 घंटे क्लास लेनी है. तो उसमें फिर सुबह नहीं भी हो पाता था, तो थोड़ी सुबह थोड़ी शाम को, पर 3 घंटे की क्लास रोज लेनी है. तो उससे क्लासेस टाइम पे मैनेज हो गई थी. तो उसके बाद रिविजन चलेगा. तो आपने स्टार्ट कब किया आपके लेक्चर्स? मतलब तुरंत स्टार्ट कर दिया आर्टिकलशिप के साथ या थोड़ा सा गैप लेकर फिर? सो मेरा इंटरमीडिएट May 19 अटेम्प्ट था. तो इस आर्टिकलशिप मेरी सितंबर में चालू हुई थी. तो मैंने दिसंबर में चालू करी थी अपनी क्लासेस SFM से. तो 3 महीने का. तो मतलब कैसे किया था पूरा? पहले SFM, फिर कितना टाइम लेके, अगर आप इलैबोरेट कर सको तो प्लीज. ओके. सो SFM लिया था दिसंबर में चालू किया था. वो आई थिंक
फरवरी मार्च तक खत्म हो गया था। फिर वहां पे मैंने कॉस्टिंग लिया था, वो सब पेन ड्राइव चालू हो गया था इस पॉइंट से। तो पेन ये मेरा आई थिंक अप्रैल तक चला था कॉस्टिंग। फिर मैंने ऑडिट लिया था, सो दैट वेंट फ्रॉम मई टू जून जुलाई, and then started at FR. So FR was a bit long up till November. That is November 2020. That was till FR. Then 2 months it was law, December January 2021 tak. Then 2 months ITT, February March 2021. And फिर उसके बाद डायरेक्ट टैक्स ले लिया था। तो दैट वाज टिल अप्रैल टू जुलाई 2020। तो जुलाई 20 में मेरी क्लासेस खत्म हो गई थी 7 सब्जेक्ट्स की। इलेक्टिव की मुझे लेनी थी। कौन सा सब्जेक्ट था आपका इलेक्टिव वैसे? मेरा इलेक्टिव था पेपर 6F, मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी। So can you please share your subject-wise strategy that you followed? मतलब एग्जैक्ट लेक्चर्स कैसे हुए, क्या किया, एंड रिवीजन कैसे प्लान किया, थोड़ा ब्रीफ में। ओके, सो सब्जेक्ट वाइज बताने से पहले मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि मैं सब सब्जेक्ट्स में रिपीट करूंगा, तो मैं स्टार्टिंग में बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्लासेस सिलेक्ट करने का मेरा क्या बेसिस रहता था। सो आई वांटेड अ बैलेंस बिटवीन क्वालिटी एंड टाइम, कि भाई मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छी क्वालिटी क्लासेस चाहिए, पर अगर वो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है तो मैं प्रेफर करूंगा थोड़ी छोटी क्लासेस ले, क्योंकि मतलब सीए में अपना ये रहता है क्लासेस कितनी भी नहीं कर लो, इंडियन आपको सेल्फ स्टडी ही करना है। तो क्लासेस सिर्फ एक बार देखने के बाद में आपको पढ़ना तो खुद ही है, 3 बार 4 बार जितनी बार पढ़ते हैं। तो क्लासेस थोड़ी टाइम पे खत्म हो जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी ऑब्वियसली। तो वो मेरा कंसिडरेशन रहते थे क्लासेस सिलेक्ट करने में। तो इसलिए मेरी खत्म हो गई थी क्लासेस जुलाई 20, दैट इज ऑलमोस्ट 10-11 months बिफोर माय सीए फाइनल एग्जाम्स। फिर दूसरी ना जो रहती थी ना कॉमन मैं कहूंगा, सो इट वाज मटेरियल डिसाइड करना, कि अपना क्या रहता है, हम बहुत बार बहुत वैरायटी ऑफ मटेरियल देख लेते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी देख लिया, फिर तो कोचिंग सर ना की क्लासेस ने मटेरियल दिया वो भी यूज कर लिया, फिर कोई नेट कोई दोस्त कह रहे हैं कि इसका मटेरियल अच्छा है वो भी रेफर कर लिया, बहुत फैला लेते हैं अपने मटेरियल्स को। सो हर सब्जेक्ट में मेरा जब फर्स्ट रिविजन जब मैंने जुलाई के बाद चालू किया था, तो आई यूज्ड टू गिव ना 1 से 2 दिन सिर्फ डिसाइड करने में कि मुझे मटेरियल कौन सा रेफर करना है। तो उस 2 दिन में मैं सिर्फ सारे मटेरियल देखता था, लोगों से पूछता था कौन सा रेफर करना है, और 2 दिन में फाइनल कर लेता था क्या मटेरियल यूज करना है, और उसके बाद नो चेंज। उसके बाद उसी से फर्स्ट रिविजन के उसी सेकंड थर्ड फाइनल एंड तक। क्योंकि अगर आप मतलब बिना प्लानिंग के एक बार चालू कर दिया आपने रिविजन, फिर आपको लगा नहीं ये बुक से नहीं पढ़ना, फिर अब बाद में चेंज करोगे तो वो काफी इश्यूज होते। तो चाहे आप 1-2 दिन स्टार्टिंग में दे दो सिर्फ ये डिसाइड करने में कि मुझे कौन सी बुक से पढ़ना, क्योंकि एट दैट पॉइंट मेरे पास बहुत सारी बुक्स हो गई थी। मेरे पास स्टडी मैट था, मेरे पास अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक्स थी, और भी जो बहुत ऑथर्स थे बहुत सारी बुक्स हो गई थी। तो उस पॉइंट पे क्लियर कर ले कि कौन सी एक मटेरियल से मुझे रेफर करना। फिर ना थर्ड आता है इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट, मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, आप कुछ और करो ना करो आपका स्टडी मैट कवर होना चाहिए। तब ये नेसेसरी नहीं है कि आप स्टडी मैट से ही करो, पर अगर आपकी दूसरी बुक से भी कर रहे हो तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा स्टडी मैट पूरा कवर्ड है इसमें, ऐसा कुछ मतलब नहीं है मटेरियल चीज जो कि मैं स्टडी मैट में है और मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, तो वो डेफिनेटली कवर हो ही जाना चाहिए आपका स्टडी मैट। फिर मैं सब्जेक्ट वाइज पे आ जाता हूँ, तो एफआर। सो एफआर काफी बड़ा सब्जेक्ट है, और ना मतलब काफी नया भी है। जैसे हम ना इंटर से कंपैरिजन करें तो पूरा इंडिया से इंडेक्स जो रहता है, तो उसकी मेरी अप्रोच स्टडी मैट से करने की ही थी। मतलब मैंने क्लासेस काफी पहले ली थी, बाद में उसके बाद स्टडी मैट अपडेट हो गई थी, एकदम डबल हो गए थे स्टडी मैट में क्वेश्चंस। सो आई प्रेफर्ड कि मैं स्टडी मैट से ही कर दूं डायरेक्टली। तो स्टडी मैट से ही मतलब कंसेप्ट्स वगैरह क्वेश्चंस एवरीथिंग स्टडी मैट से ही करा था अपने रिविजन्स में, जो फर्स्ट रिविजन चालू किया था। और थोड़ा ज्यादा टाइम रखा था एफआर के लिए। लास्ट में जैसे 14th में को जो पेपर था, तो मैंने उसके पहले 6 दिन रखे थे सिर्फ एफआर के लिए। जैसे बाकी सब्जेक्ट तो 1.5 दिन में करना है, एफआर के लिए 6 डेज रखे थे, वो भी थोड़ा स्ट्रगल से ही कंप्लीट हुआ था 6 डेज में। थोड़ा एक्सटेंसिव रहता है वो भी सब्जेक्ट भी। फिर सेकंड हमारा आता है एसएफएम। तो एसएफएम में काफी इंपॉर्टेंट आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जिस भी आप टीचर्स लेते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी और नोट्स आपके वो फॉर्मूलेज वगैरह वो सब एकदम क्लियर होने चाहिए, और सारे क्वेश्चंस आपके एसएम वगैरह क्वेश्चन सारे आने चाहिए। मतलब मेजरली काफी हद तक वही क्वेश्चंस मॉडिफाई होकर पेपर में रिपीट हो जाते हैं, नए भी आते हैं डेफिनेटली, उसके लिए मेरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए एसएफएम में। एसएफएम में मेरी ना अप्रोच वही थी, मैंने मतलब जो हमारे क्लास नोट्स थे उनकी एक समरी बना ली थी अराउंड 50 पेजेस में, पूरी एसएफएम की नोट्स की कि क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, और अगर कोई क्वेश्चंस में कोई स्पेसिफिक चीजें मुझे लगती हैं तो उनको भी उसी नोट्स में नोट कर दिया
कि इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे करना है, इस क्वेश्चन में ऐसे करना है, तो वो एग्जॉस्टिव नोट्स हो गए, जिसके बाद में 15 मिनट में एक चैप्टर हो जाते हैं उन नोट्स से, फिर सीधे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, क्योंकि मतलब मेरे नोट्स काफी जो क्लास में लिखे थे वो 4-5 कॉपीज हो गए थे, तो उतना एंड में पढ़ना पॉसिबल नहीं रहा था। एक ना एसएफएम तो ये हो गया। फिर अपना आता है थर्ड सब्जेक्ट ऑडिट। सो ऑडिट मुझे सबसे गंदा सब्जेक्ट लगता था, मतलब सबको ऑलमोस्ट लगता ही है, क्योंकि वो है ही थ्योरी वो। को याद करने में काफी डिफिकल्ट रहता है। सो अगेन ऑडिट में मेरी अप्रोच थी कि बार बार पढ़ना, थोड़ा मतलब जितनी बार पढ़ेंगे तो ही याद रहेगा, और थोड़ा ज्यादा स्टडी मैट पे फोकस, कि ना जो अपने स्पेशल ऑडिट्स वगैरह चैप्टर्स हैं स्टडी मैट से करेंगे, क्योंकि अब आजकल इंस्टीट्यूट क्या करता है, कहीं से भी क्वेश्चंस बनाता है, वो होते स्टडी मैट से ही है, पर वो एकदम नए क्वेश्चंस बनाता है, जो टॉपिक्स कभी नहीं पूछे हुए उन पे वो क्वेश्चन डाल देता है आजकल। तो उसके लिए मतलब स्टडी मैट कहीं ना कहीं आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो ही वो क्वेश्चंस आ पाएंगे। तो मेरी अप्रोच मतलब मेजोरिटी जहाँ पे स्टडी मैट से, कुछ चैप्टर्स को दूसरी बुक से, क्योंकि वो अगर वो नहीं हो पा रही स्टडी मैट से, फॉर एग्जाम्पल ऐसे स्टडी मैट में है ही नहीं प्रॉपरली, तो वो तो कहीं और से ही करने पड़ते। बार बार रीड करना ही मतलब ऑडिट का सोल्यूशन है, रट हम नहीं सकते ऑडिट को, वो पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ रीड कर लो, अंडरस्टैंड समझ सकते हो तो समझ लो, तो उससे भी थोड़ी मतलब ऐसा, मतलब कई बार ऑडिट में होता है कि आपको पेपर में इतने नए सवाल आ जाते हैं, आपको पता नहीं होता क्या लिखना है। जैसे ऐसे इसके तो कंपल्सरी 1-2 सवाल आते ही हैं जो एकदम प्रोनाउंसमेंट्स में से ही होते हैं, जो मतलब आपने प्रोबेबली नहीं पढ़े हो, तो अगर आप थोड़ा आपका समझा हुआ है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो आप मन से भी कुछ लिखोगे तो उससे तो आपको 5 में से 2-3 नंबर मिल सकते हैं। तो थोड़े वो कंसेप्ट, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ऑडिट की थोड़ा रिलेट करके हम अगर रियल लाइफ से अपने एक्सपीरियंस से उसको अगर समझ लेते हैं, तो हमारा आंसर जो हम गेस मारेंगे ना आप पेपर के अंदर, वो बेटर हो जाएंगे। क्योंकि ऑडिट में मतलब जैसा मेरा केस हुआ था, मुझे 30-40% पेपर गेस ही मारना पड़ा था। मुझे वो बहुत अच्छे से याद नहीं था, मुझे काफी पॉइंट्स मन से ही लिखने पड़े थे। ये 5 मार्क का तो मुझे 3 मार्क का याद आ रहा है मेरे को, बाकी 2 पॉइंट मन से ही लिखना। तो ये क्लैरिटी अगर रहेगी तो आपके वो गेसेस जो है, जो आप खुद के मन से लिख रहे हो, वो भी बेटर होगा कि आपको उस पर भी मार्क्स मिल जाए। फिर अपना आता है लॉ। तो लॉ आई बिलीव कि अपना स्टडी मैट मतलब काफी सफिशिएंट रहता है उसके अंदर। लॉ एक काफी लोग कहते हैं सेक्शन याद करने के, तो सेक्शन सच याद आपको नहीं करने, पर सेक्शन याद करने के बेनिफिट रहता है, आपकी इंडेक्स बन जाती है, आपको सेक्शंस के रिलेट नंबर से रिलेट करके सारी चीजें याद हो जाती है। अब जैसे कि इनकम टैक्स में अपने को डिडक्शन सारे उनके सेक्शन नंबर के साथ ही याद होते हैं, 80C 80D 80P, तो वो एक तरीके से इंडेक्स बन गई हमारी सेक्शंस के उनके कंटेंट के साथ। तो वो भी चीज लॉ में रहती है, तो उससे काफी अच्छी रिमेम्बरिंग हो जाती है अगर आपको सेक्शन थोड़े बहुत याद है तो, वरना ऐसा कोट करना पेपर में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता लॉ में। लॉ में अगेन वही है कि ना स्टडी मैट से मतलब मेनली पढ़ सकते हैं, बाकी आपकी वो चॉइस है। एक और कॉमन पॉइंट मैं बोलना चाहता था, मैं भूल गया था पहले, पास्ट पेपर्स वगैरह, मतलब सब सब्जेक्ट से मेरी अप्रोच थी कि न्यू कोर्स एज इन May 18 से लेके अब तक के जो भी पास्ट पेपर्स आरटीपीज एमटीपीज हैं, उनके क्वेश्चन एक बार कर लिए। तो नॉट नेसेसरीली सारे एक पेपर्स खोल के, कोई ना कोई कंपाइलर अपने को मिल जाता है मार्केट में जिसमें सारे क्वेश्चंस कंपाइल्ड होते हैं विद इंस्टीट्यूट के आंसर्स। सो वो कर लिए एक बार, तो उनको बार बार नहीं कर सकते, तो एक बार करके उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके रखते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस, तो वो वैसा रहता है। और एक और चीज है एमसीक्यू बुकलेट्स, ये अपने 4-5 सब्जेक्ट्स के लिए रहेगी, जो ऑडिट लॉ डीटी आईटीटी में रहती है। एमसीक्यू बुकलेट जो इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है, तो वो डेफिनेटली करने की रहेगी, क्योंकि एक तो क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाती है, पर उससे ज्यादा जो है ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है उनसे, कि काफी कंसेप्ट हम होते हैं जो हम बुक में होते हैं पर हम उनको इग्नोर कर देते हैं, या फिर उनको इतना ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ ठीक है, फिर जब उसका एमसीक्यू मिलता है ना हमको बुकलेट में, तो फिर हमारे साथ वो गलत होता है, तो हमको फिर हमेशा याद रहता है कि ये कंसेप्ट था, तो वो प्रैक्टिकल अगर सब्जेक्टिव में भी आ जाएगा तो भी हमको याद रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे डीटी के अंदर ही जब मैं एमसीक्यू बुकलेट कर रहा था, तो एक क्वेश्चन आया था कि इस कंपनी को सेक्शन 1 पे बीएबी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आई वाज लाइक कि ये क्वालिफाई तो कर रही है कंडीशंस, बट इसकी डेट क्या है कॉर्पोरेशन की, तो मुझे वो ध्यान नहीं था कि भाई 115 बीएबी 1 अक्टूबर 19 से लगता है। उन्होंने 2 कंपनी दी क्वेश्चन, एक उसके पहले की एक बात की, तो मैंने उस समय जब पढ़ा था सेक्शन, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि भाई तो पुराना हो गया, मैं तो AY 22-23 कर रहा हूँ, 19 तो बहुत पुरानी डेट है, रेलेवेंट नहीं है, और उसका क्वेश्चन आ गया उसके अंदर एमसीक्यू बुकलेट में, तो फिर मेरे को उस पॉइंट पे ध्यान रहेगा, तो मेरे को अब हमेशा ध्यान रहेगा कि 1 अक्टूबर 19 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ये बीएबी मिलेगा। तो ऐसे कंसेप्ट क्लैरिटी चारों सब्जेक्ट्स में बढ़ती है अगर एमसीक्यू बुकलेट्स हम करते हैं, और अगेन उनको भी सिर्फ एक बार करना है, बार बार नहीं करना है, एक बार करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके रखना, कोई भी कॉपी में, बुक में या कहीं पे भी,
ताकि आप उसको बाद में सिर्फ उन्हीं को पढ़ के आपका पूरे एमसीक्यू बुकेट कवर हो जाए। सो ये हो गया लॉस। फिफ्थ आता है हमारा कॉस्टिंग। सो कॉस्टिंग एससीएमपी हमारे ओल्ड कोर्स जैसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ओल्ड कोर्स में प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते थे, आजकल मेजॉरिटी थ्योरी रहता है। हमारे पेपर में अराउंड 120 में से 80 मार्क्स बस थ्योरी और 40 मार्क्स प्रैक्टिकल, जो भी मतलब कंपैरेटिवली सिंपलर ही होता है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना ओल्ड कोर्स में हुआ करता था। तो बहुत बार हम सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पे इतना फोकस करते हैं, थ्योरी इग्नोर कर देते हैं। तो कॉस्टिंग में थ्योरी पे काफी फोकस रहना चाहिए। मतलब थ्योरी याद करनी पड़ेगी और वो बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है। मतलब ऑडिट के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो वो थ्योरी पे मतलब 80 मार्क्स की थ्योरी है अगर, और हम अच्छे से करके जाते हैं तो डेफिनेटली बेटर हो जाता है हमारा कॉस्टिंग का। और वो नहीं करी तो फिर आपका 80 मार्क्स का पेपर नहीं आता तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा उस केस में। सो थ्योरी पे ना कॉस्टिंग में काफी फोकस रहना चाहिए। प्लस हमारे जो केस स्टडी बुकलेट ना, जो केस स्टडी डाइजेस्ट वगैरह आती हैं, तो उनकी भी उनसे भी इतना आइडिया लगता है कि भाई कैसे अटेम्प्ट करना है उसको। इन दी एंड नई केस स्टडीज आएंगी तो उसकी भी थ्योरी वगैरह आपको आनी चाहिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा है नहीं, मतलब काफी सिंपल, ज्यादा बहुत डिफिकल्ट ओल्ड कोर्स जैसे क्वेश्चंस नहीं है। तो पहले स्टार्टिंग में हमने पीएमवीएम में क्वेश्चंस भी करे थे, तो आजकल उसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। कभी कभी हो सकता है आ जाए, बहुत रेलेवेंस नहीं है। मतलब स्टडी मैट के क्वेश्चंस और पास्ट पेपर्स वगैरह से हो जाती है कॉस्टिंग। तो पेपर 6 फिर आता है हमारा इलेक्टिव। कॉस्टिंग आपने मतलब फिर मॉड्यूल से ही किया क्या मैक्सिमम, थियरी मैंने पार्ट? सिर्फ मॉड्यूल, हाँ थ्योरी मॉड्यूल से। मतलब आजकल जैसे क्या हो रहा है, दिसंबर वाले पेपर में हुआ था, वो लोग हेडिंग दे रहे हो अंदर का पूछ रहे हैं। तो अगर आप किसी भी नोट्स वोट से करोगे, वो लोग सिर्फ हेडिंग कवर करेंगे अगर तो। और स्टडी मैट में पूरा डिस्क्रिप्शन भी है, तो स्टडी मैट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसे करेंगे हेडिंग पूछ ले अंदर का बताओ, तो अंदर का तो हम याद ही नहीं करते नॉर्मली। तो ऐसा हुआ है। तो मतलब स्टडी मैट में से कहीं से भी थ्योरी आ सकती है और उसके बाहर नहीं आती। उसके बाहर आती तो जनरल थ्योरी होती वन से लिखने वाली, वरना उसके बाहर नहीं आएगी। तो स्टडी मैट की से ही करनी है थ्योरी। अब मेरा यही प्रेफरेंस रहता है। पेपर 6 है इलेक्टिव। सो मेरी काफी अनकन्वेंशनल चॉइस थी इलेक्टिव के अंदर, मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी। जो जैसा कि मैंने फिगर्स देखे हैं, 50-60 से ज्यादा बच्चे नहीं लेते अटेम्प्ट। नॉर्मली सब इकोनॉमिक लॉ, आरएम और जीएफआरएस टाइप के पेपर्स में ही रहते हैं। तो मेरा ये लेने का मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है पढ़ने का, सातों सब्जेक्ट ही आते हैं इसमें। तो क्योंकि अगर आपको सातों सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस है तो ये पेपर आपका हो जाएगा। प्लस तो मुझे इस पे टाइम बिल्कुल भी डिवोट नहीं करना पड़ता है, एक्सेप्ट जो केस स्टडी डाइजेस्ट में 2 दिन लगता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और प्लस इसका ये बेनिफिट और मुझे लगा था कि वो जो 1.5 दिन मिलेगा मुझे पेपर 6 के पहले, मैं उसमें अपनी डीटी आईडीटी पढ़ सकता हूँ जो अगले 2 पेपर चलेगा, क्योंकि उनमें टाइम कम पड़ेगा। तो मैं उसकी पढ़ाई भी यहाँ कर सकता हूँ, इसमें काम भी आएगी डीटी आईडीटी आएगा ही। पर ऑल दो काफी अनकन्वेंशनल चॉइस है। आप कौन सा प्रेफर करोगे, कौन सा लेना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब जो इजी हो और मतलब ज्यादा टाइम टेकिंग भी ना हो। Yeah, that is a very personal choice है कि आपको किस में सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है, आपका किस फील्ड में एक्सपोजर है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब आजकल जैसे इकोनॉमिक लॉ काफी फैशन में है, काफी उसमें इजी पेपर्स आ रहे हैं, पर कब ट्रेंड चेंज हो जाए भी नेवर नो। जब तक इजी आ रहा है तब तक वो बहुत फैशनेबल रहेगा, फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर लोग दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर आपका जैसे बहुत लोगों का अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर इंडियस में होता है, वो लोग जीएफआरएस ले लेते हैं, किसी का टैक्स में होता है इंटरनेशनल टैक्स ले लेते हैं। तो आपके इंटरेस्ट, इजीनेस, वो सब बैलेंस आपको एक बार पर्सनल डिसीजन लेना पड़ेगा उसके लिए क्या बेस्ट है। कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ये बेस्ट है, वरना इंस्टीट्यूट 6 ऑप्शन नहीं देता है अगर कोई एक बेस्ट होता है। फिर आता है हमारा पेपर 7 डायरेक्ट टैक्सेस। सो डायरेक्ट टैक्सेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है हमसे कि वो एकदम ज्यादा टैक्स में आप एक्सपर्ट बन जाओ इस पॉइंट पे। तो सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी टैक्स में ही चाहिए होती है, मतलब अमंग ऑल द सब्जेक्ट, जैसा मुझे फील हुआ। और सबसे ज्यादा वाइड कोर्स भी टैक्स का ही है, और सबसे नए क्वेश्चंस भी टैक्स में ही आता है। बाकी सब्जेक्ट्स में रिपीट होते हैं, टैक्स में कभी क्वेश्चंस मैंने रिपीट होते हुए नहीं देखे। तो टैक्स में प्रायोरिटी वही है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम डिटेल में रखें, पर एट द सेम टाइम अपनी जो बुक हम रेफर कर रहे हैं वो सफिशिएंटली एग्जॉस्टिव भी ऊपर इतनी बड़ी भी ना हो कि हम 1.5 दिन में खत्म कर सकें। तो उससे मेरी अप्रोच ना ऐसे रहती थी कि जो मेन बुक से पढ़ा मैंने, फिर समरी पढ़ी, तो समरी में मिसिंग पॉइंट्स हमको मेन बुक से नोट कर लिया, समरी तो स्टिकी नोट्स लगा दिया, साइड में कहीं लिख लिया। फिर जो एमसीक्यू बुकलेट्स करी उसमें नए पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत नए पॉइंट्स मिलते हैं, तो उनको भी उसी बुक में नोट कर लिया।
तो लास्ट डे के लिए मेरे पास सिर्फ एक वो समरी मॉड्यूल है जिससे मुझे कि 1.5 दिन में खत्म करना है अपने डायरेक्ट टैक्सेस। फिर लास्ट हमारा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस ना का भी अप्रोच अप्रोच मैंने उसमें स्टडी मैट से पढ़ा था मेजरली। स्टडी मैट्स और मेरे एक कोचिंग सर की बुक, उससे कुछ कुछ चैप्टर्स कहीं से कुछ कहीं से। तो आईडीटी कंपैरेटिवली डीटी के कंपैरिजन में थोड़ा सिंपलर रहता है, थोड़ा मतलब इजियर रहता है, क्योंकि अभी इतने केस लॉज वगैरह भी नहीं है डायरेक्ट आईडीटी में जितने की डीटी में है, जितने प्रेसिडेंट जितने केस लॉज। आईडीटी थोड़ा अभी अर्ली स्टेज में ही है, उतना जीएसटी में उतनी चीजें हैं नहीं। तो वो मेरे अप्रोच स्टडी मैट से करने की रहती थी। क्वेश्चन स्टडी मैट के डेफिनेटली करना है आईडीटी में, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन है आईडीटी में स्टडी मैट के, वो डेफिनेटली करना है। पास्ट पेपर्स वगैरह वो सब तो मैं एक बार बोल ही चुका कॉमन के अंदर। और आई थिंक ऐसा ही है सब्जेक्ट वाइज। तो आईडीटी आपका फेवरेट था क्या वैसे? मेरा डीटी फेवरेट। 97 इन आईडीटी, राइट? हाँ, आईडीटी में 97 है। तो सेल्फ स्टडी एंड लेक्चर्स, मतलब आपको क्या लगता है कैसा बैलेंस होना चाहिए? वैसे तो सबको पता है कि सेल्फ स्टडी इज डेफिनेटली मोर इम्पोर्टेंट, बट स्टिल मतलब लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस ये रहती है कि आपको एक बार खुद रीड करने में हो सकता है समझ ना आए, तो एक बार टीचर से सुन लेंगे तो समझ आ जाएगा। तो स्कूल में भी एक बार तो टीचर पढ़ाता है, उसके बाद ही सेल्फ स्टडी आती है। तो लेक्चर्स की उतनी रेलेवेंस है कि एक बार कोई टीचर पढ़ा देगा तो कंटेक्स्ट मिल जाएगा, समझ आ जाएगा, उसके बाद तो खुद ही पढ़ना। पर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं उनके अंदर जो थ्योरेटिकल है, तो उसमें कई बार हमें फील होता है कि हम खुद पढ़ेंगे तो भी समझ आ जाएगा। तो हमने इतनी सी इंटर तक पढ़ा है लॉ को या जो भी चीजों को पढ़ा है हमने थ्योरी को, कि हम खुद पढ़ के समझ सकते हैं। तो कई बार ना अगर हमको इतना कॉन्फिडेंस रहता है तो हम क्लास स्किप भी कर सकते हैं। इन दी एंड काम से टीचर एक बार पढ़ाएगा 4 बार, तो अब 3 बार आपको ही पढ़ना है, उसके बाद काम वही आता है। तो अभी मतलब एआईआर 2 आया है तो बहुत ज्यादा पढ़ाई तो की होगी, तो मतलब इतना यू आर बिजी नॉट ऑडिबल, कैन यू रिपीट? हेलो हेलो, अब आ रही आवाज? आ रही। तो डिस्पाइट बीइंग सो बिजी, आप फैमिली फ्रेंड्स क्लोज फ्रेंड्स वगैरह को टाइम देते थे या मतलब पूरे अंडरग्राउंड हो गए थे एक साल के लिए? नहीं, मैं टाइम देता था, मतलब आर्टिकलशिप में तो एकदम टाइम देता ही था डेफिनेटली, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं था। फिर जो लास्ट 6 मंथ्स की सेल्फ स्टडी थी उसके अंदर भी मैं टाइम निकाल ही लेता था थोड़ा बहुत। तो मतलब कि शाम को जैसे डिनर के बाद घर वालों के साथ बैठना है तो 1-1.5 घंटे बैठ गए, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। इतना टाइम तो मतलब निकल ही जाता। इनफैक्ट मेरी मार्च के अंदर मेरी रियल सिस्टर की वेडिंग भी थी, तो मैंने उसमें भी पूरा एंजॉय पूरा काम वाम किया ही था। तो ऑल 15-20 डेज उसमें गए थे। और मतलब एकदम कट ऑफ एकदम वो तो मैं नहीं हो पाता कि एकदम कट ऑफ होकर अंडरग्राउंड होकर बैठ जाओ। आपको लीव्स कितनी मिली थी? लीव्स 4.5 months के अराउंड, मतलब 15-16 दिसंबर से। व्हाट इज योर कोर इंटरेस्ट, मतलब आर्टिकलशिप में कहाँ आपको ज्यादा इंटरेस्ट था? फाइनेंस, टैक्स, ऑडिट? ज्यादा मेरा इंटरेस्ट मतलब मैंने मेजरली इंडियस कंसल्टेंसी और डायरेक्ट टैक्सेस में काम किया। मेरा ज्यादा इंटरेस्ट डायरेक्ट टैक्सेस में, इनकम टैक्स। where will we be able to see you in near future? Like कोई बड़ी कंपनी में जॉब या सीए प्रैक्टिस? अभी आप बोल रहे हो पापा भी सीए, तो या फिर कुछ एंटरप्रेन्योरशिप टाइप अलग से ही कुछ? व्हाट आर यू प्लानिंग? अभी तो मैं भी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ, लेट्स सी। Okay. Are there any other courses or degrees you are pursuing? मतलब सीए के साथ, या अभी प्लान कर रहे हो कि करना है? नहीं, बस बीकॉम करा था, अभी एज सच कोई प्लान्स नहीं है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या रहता है। So, I'm very happy to share with you all कि Akshat was part of Aurangabad CA Students National Conference and he even participated in moot court and won a session there. So firstly Akshat, आपका experience कैसा था औरंगाबाद के national conference में? औरंगाबाद कॉन्फ्रेंस का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। ये कॉन्फ्रेंस मुझे वैसे काफी पसंद है और औरंगाबाद में काफी मजा आया था। मतलब मूट कोर्ट एक मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। नॉर्मली मैं पेपर प्रेजेंटेशन के लिए जाता हूँ, तो मूट कोर्ट काफी नया एक्सपीरियंस आता है और वो पेपर प्रेजेंटेशन ज्यादा रिवॉर्डिंग लगा था मुझे। इनफैक्ट ज्यादा स्टेज पे बोलते समय और जो रिस्पॉन्स था ऑडियंस का, मुझे वो काफी ज्यादा रिवॉर्डिंग लगा था। बाकी आपकी हॉस्पिटैलिटी वगैरह सब बहुत अच्छी थी, थैंक यू। Didn't you thought कि litigation practice वगैरह कुछ करते, LLB करते, ऐसा कुछ सोचा नहीं क्या घर जाके आपने? हाँ, मुझे कहा था कि इसमें आना जजेस वगैरह ने कि आप इसमें आगे परस्यू कर सकते हो,
पर लेट्स से एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी तो ऑप्शन सब पे ओपन ही है। Tip from your side to all the students who are thinking like AIR लाएंगे हम, उनके लिए कोई स्पेशल टिप? स्पेशल टिप, सो जो मुझे मेरी सीए फाइनल जर्नी में रियलाइज हुआ कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है, वन इज प्लानिंग, वन इज कंसिस्टेंसी। मतलब अगर हम अनप्लान्ड तरीके से हमारी क्लासेस या पढ़ाई करते हैं तो एंड में टाइम नहीं बचता, फिर चीजें नहीं हो पाती। अगर प्लानिंग स्टार्टिंग से ही हम रखेंगे तो सब थोड़ा स्मूथली कंफर्टेबली निकल जाएगा एंड तक। प्लानिंग ऐसे भाई क्लासेस टाइम पे खत्म करना, फिर पूरे रिविजन प्लान करके रखना कि टाइम पे वो खत्म हो जाए, 3 रिविजन मैनेज हो जाए। मतलब 3 को रूल ऑफ थंब नहीं है, मेरा प्रेफरेंस 3 का था। तो आपके रिविजन पूरे हो जाए, आपके 3 घंटे में पेपर खत्म हो जाए उसकी प्लानिंग, आपके 1.5 दिन में कोर्स हो जाए उसकी प्लानिंग। प्लानिंग मतलब स्टार्टिंग से अगर हम कंप्लीट ना प्रॉपरली रखते हैं तो चीजें थोड़ी कन्वीनियंटली थोड़ी कंफर्टेबली निकलती है। अगर प्लानिंग नहीं रहती तो हमारी क्लासेस काफी एंड तक एक्सटेंड हो जाएंगी, हमें रिविजन के लिए टाइम कम बचेगा, वो थोड़ी इश्यूज रहते हैं। सेकंड कंसिस्टेंसी, मतलब सीए कोर्स 3 ये फाइनल 3 साल का है, तो आपको तीनों साल एफर्ट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल से आर्टिकलशिप पर मजे मार लो और उसके बाद सोचो कि चलो आप पढ़ाई करते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंटली सीए फाइनल में प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा, चाहे आप सिर्फ क्लासेस ही लो, मतलब आपकी प्रिपरेशन चलनी चाहिए कंसिस्टेंट। मैं बता। And as everybody knows, failure is part and parcel of CA journey. तो जो अभी क्लियर नहीं कर पाए उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? जो क्लियर नहीं कर पाए, आई वुड जस्ट से कि भाई ना हौसला रखिए। मतलब सीए जरूरी नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो, सबका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट भी होता है। सो मतलब इट्स लाइक कि ना सारे सीएस एक ही लाइन में है, सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा आगे है लाइन में, सेकंड अटेम्प्ट थोड़ा पीछे है, पर लाइन सेम ही लाइन में, और लाइन आगे सबके लिए खुला रहेगा आगे का दरवाजा। सो इट्स नॉट लाइक कि आप कहीं लाइन से निकल गए या कुछ हो गए, जस्ट दैट आप 6 महीने लेट हो पर आप उसी लाइन में हो और सेम डोर्स आपके लिए भी होगा। तो आप हार्डवर्क कंटिन्यू रखिए, हौसला रखिए, और एक अपनी कॉपीज मंगवा के अपनी देखिए क्या गलतियां, सर्टिफाइड कॉपीज। So lastly, guidance and message from your side to all the people who are watching this, all the CA students. So from my side I would just say कि वे हार्डवर्क कंटिन्यू रखिए सीए के अंदर सीरियसली। मतलब वो तो है ही, मतलब 12th में काफी कैजुअल होता है, जैसे मैं भी था डेफिनेटली 11-12 तक। उसके बाद आके सीरियस होके सीए रखिए, पर ऐसा नहीं है कि सीए कोर्स सिर्फ पढ़ाई के बारे में है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ऐसा नहीं होता सीए कोर्स में। आप काफी एक्टिविटीज, एंजॉयमेंट, पब्लिक स्पीकिंग सब कर सकते हैं, जैसे कि अभी विधि ने बताया कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। सो मैं औरंगाबाद कॉन्फ्रेंस में था, अराउंड 2-3 वीक्स पहले हुई थी औरंगाबाद कॉन्फ्रेंस। सो मैं उसमें आया था 4-5 डेज के लिए मूड कोर्ट में। तो वहां मैंने काफी फ्रेंड्स बनाए, काफी इंजॉयमेंट किया। तो ऐसे और भी 2 कॉन्फ्रेंसेस होती हैं आपके, विकासा होता है, निकासा वाला, आपके उस सब में पार्ट लीजिए। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज लाइफ मिस कर रहे हैं सीए में, आपको इनिशिएटिव लेके आप वो पूरा एंजॉयमेंट, पूरी कॉलेज लाइफ जी सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई है। So yes, thank you so much, Akshar. If anybody of you want to ask something, you can continue. किसी को पूछना है कुछ? So I don't think किसी को कुछ पूछना है. So yes, thank you so much, Akshar. Thank you everyone for joining this. विधि, हेलो विधि, हेलो, यस आवाज आ रही है विधि? अक्षत आवाज आ रही है सर, मेरी? आ रही है आवाज। हाँ। सो अक्षत, तुम्हारी ये जो टिप्स दी है तुमने सारे स्टूडेंट्स के लिए, ये टिप्स तो स्टूडेंट्स होप ये सब इसी के बेसिस पे चल के आगे बढ़े और पढ़ाई करें। और जो आपने बेसिकली सेल्फ स्टडी के बारे में बताया, तो ये सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, सेल्फ स्टडी से ही जाना चाहिए। तो ये अगर मैसेज स्टूडेंट फॉलो करते हैं तो, क्योंकि जेल से ऑफलेट हम देख रहे हैं कि सिर्फ स्टूडेंट्स जो है वो नोट्स के बेसिस पे ही आगे बढ़ रहे हैं। मतलब भाई रट्टा मार लिया, ये कर लिया, तो उस बेसिस से आगे बढ़ना मुश्किल है। तो जो सेल्फ स्टडी के बारे में आपने बताया वो वाकई में हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए।
एंड वन मोर थिंग, आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैं कि आपने जो लिटिगेशन के हद तक औरंगाबाद में जो भी आपने मूट कोर्ट के अंदर किया था, तो ये फील्ड आप कुछ आईएलएस के थ्रू करना चाहते हैं या आईएलएस में कोई प्लान है आपका आईएलएस जाने के लिए? So ILS as in? हेलो, So ILS. लॉ स्कूल से आपका कुछ एलएलबी वगैरह करने का प्लान है? सर अभी कुछ सोचा नहीं है, लेट्स सी, मतलब अभी तो सब ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। अच्छा, ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चालू है, चलो अच्छा है, ओके। अभी तो सब तरफ फैमिली में, इधर सब तरफ आपका फिलहाल बिजी चल रहा होगा शेड्यूल फैमिली एंड फ्रेंड्स में। हाँ सर, फैमिली पे फिर अभी सब प्लेसमेंट्स वगैरह भी चालू हो गए, तो सबके कॉल्स, मतलब सीवी बनाना। ओके, तो जयपुर में प्लेसमेंट्स है, कैंपस प्लेसमेंट चालू हो गए? नहीं सर, कैंपस प्लेसमेंट्स तो अगले महीने से हैं, पर मतलब कॉल्स वगैरह ऑफ कैंपस वगैरह सब चल रहा है। अच्छा, ऑफ कैंपस चालू है, ओके ओके। चलो, ऑल द बेस्ट अक्षत for your future in the CA profession or whatever profession you choose, LLB or CA, whatever it may be. So do your best, and thank you so much for sharing your experience. Thank you sir for inviting me. Thank you so much, Akshay. Thank you for agreeing for this. I know you are really busy, but still, and you're a really humble person. It was great talking to you. I hope all these people have definitely added value to their lives, and all of them will be adding your experiences. And thank you for answering all the questions. So for more such videos, be connected to Aurangabad Vikasa. Follow us on our Instagram page and YouTube channel as well. This is Vidhi Goda signing out. Thank you so much.